हालेलुया। प्रचार से पहले Before the message, मैं मेरे साथ घटा एक घटना को बताना चाहता। I want to say about an incident which happened in my life. ध्यान से सुनना चाहिए, थोड़ा टाइम है, जो बात ध्यान से सुनेगा आज सब लोग आशीष पाके जाए। We have a very short time. You must listen very carefully. Those who listen carefully will receive blessings and go. मैं जब अंडमान में सेवा कर रहे थे, When I was serving the Lord in Andamans, उस समय एक व्यक्ति को बोन कैंसर हो गया। बोन कैंसर at that time a person had bone cancer. अंडमान से उसको मद्रास लेके गया They took him from Andamans to Chennai और उसका इलाज किया and they treated him. और डॉक्टर ने बोला तुम जिंदगी में चल नहीं सकते। And the doctor said that throughout your lifetime you'll not be able to walk. और उसके बाद में बोला 1 महीना के अंदर तुम मर जाएगा। And after that he said, within a month you will die. वापस उसको अंडमान लेके आए। Again they brought him back to Andamans. उनका घर वाले सब रोने लगे His family members, they were weeping क्योंकि 1 ही महीना उसको समय दिया गया था। because there was only 1 month's time given to him. मैंने उनका घर में प्रेयर रखा, I kept a prayer in their house उपवास प्रार्थना किया। for a fasting prayer. उपवास प्रार्थना में मेरे अंदर आत्मा प्रेरणा किया, उससे पूछे वो कब चंगा होना चाहता है। In the fasting prayer, the Spirit of God urged me and I asked him a question, when do you want to receive healing? उन्होंने बोला नया साल में। He said in the new year. हम लोग उनका मुंह से जो वचन निकला वो वचन को बोल के हम लोग उधर प्रेयर किया। Whatever word uttered from his mouth, we prayed according to that word. नवंबर महीना में शायद मेरा याद सही है तो प्रार्थना रखा था। Maybe it was in the month of November that we kept the fasting prayer. उन्होंने बोला न्यू ईयर में मैं चलूंगा। He said, in the new year I will walk. न्यू ईयर मीटिंग चालू है The new year meeting was started. और रात 12 बज गया It was night 12 o'clock. और न्यू ईयर में सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। In the new year everybody entered. सब लोग आत्मा में बढ़ रहे हैं। All were filling in the Spirit. उन्होंने बोला बात मेरे अंदर आया। And the word which she said came into my heart. उनके पास जाके आत्मा में होकर हाथ पकड़ के उठा के बोला चल यीशु के नाम से। I went near him, I fell in the Spirit, I held his hand, I said, you arise and walk in the name of Jesus. पूरा हॉल के अंदर वो रात को चलना शुरू कर दिया। Inside the hall, the whole night he was walking. विश्वास करने वाला हालेलुया बोलिए। Those who believe shout in hallelujah. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। Our God is a great God. लेकिन कमी कहाँ मालूम है? But do you know where is the lacking? बोलिए, हमें विश्वास नहीं है। We don't have faith. हम विश्वास को बढ़ाएगा आशीर्वाद पाएगा। If we will increase our faith, we'll receive the blessings. दुकान से कुछ भी खरीदना है पैसा चाहिए। If you need to buy something from the shop, you need money. लेकिन प्रभु से कुछ भी पाना है विश्वास चाहिए। But if you want to get something from the Lord, you need faith. जब प्रेरितों का समय में किसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? During the time of the apostles, upon whom did the Holy Spirit descend? पौलुस क्या पूछा? What did St. Paul ask? जब तू विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है क्या? Did you receive the Holy Spirit from the time you believed? तब आज आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। Today I want to put forth a question to you. मेरा प्रचार आरंभ होने से पहले Before my message starts, आज का दिन मैं इधर से मीटिंग खत्म होने से पहले आशीष पाके ही जाएगा करके विश्वास जितनों को है आप लोग खड़े हो जाओ। those who say that today before this meeting is over, I want to leave this place along with blessings. Those who say like that, you please stand up. स्वर्ग देख रहा है। Heaven is watching. हम आप लोगों के लिए प्रेयर करने जा रहा है। We are going to pray for you. यीशु मसीह लोगों को खिलाने से पहले Before Jesus Christ fed the people, यीशु ने लोगों को बैठा दिया। He made the people to sit down.
5 रोटी सिर्फ हाथ में है, He had only 5 loaves in his hand, लेकिन लोगों को विश्वास से बैठाया। but he made the people to sit by faith. आज जितने लोग खड़ा है, Today, how many people are standing over here? उन लोग नया आशीष पाएगा, These people will receive new blessings क्योंकि विश्वास के साथ उन लोग खड़े हो गए। because they are standing with faith. सब लोग आत्मा में भर के इनके लिए प्रार्थना करें। Everybody fill in the spirit and pray for these children. यीशु मसीह 5,000 को बैठा के भूखा भेजा नहीं, Jesus Christ made 5,000 people to sit. He never made them to go again hungry. सबको तृप्त से खिलाया, He filled everybody with satisfaction. हरेकों को खिलाए। He filled वही everyone. यीशु हरेकों का प्यास और भूख मिटाना चाहिए। The same Jesus must quench the thirst of everybody and जो अन्य भाषा पाया, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। those who got the anointing, you speak in unknown tongues and pray. जो लोग अन्य भाषा नहीं पाया, अपनी भाषा में प्रार्थना करो। Those who don't have unknown tongues, you pray in your language. ये जवानों को आज स्वर्ग अंगीकार करना चाहिए। Today heaven must accept these youths. ये जवानों को नया अभिषेक मिलना चाहिए, These youths must get a new anointing. नया वरदान मिलना चाहिए। Must get new gifts. इस जगत में ज्योति के समान चमकना They चाहिए। must shine as lights in this world. मिलके प्रार्थना करें एक Let us all join together and pray. शाबाला भंखला थुना मारिया शादा भंखला थुना मारा खतुना। यीशु हम तेरे कदमों में है प्रभु, लोगों के ऊपर दया कर। तेरे दया से सब कुछ संभव है, तेरे दया से सब कुछ संभव है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं प्रभु जिला। शबाला बला खतरा। पापी ज़काई का घर में जाके उतरा प्रभु, पापियों का दिल में वास करने उतरा। खुदा भला बाबूशी गला खुदा थिया खिला हारिया ला बाबूशी गला थिया। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। बैठ जाइए। Please sit down. आज का चिंता विषय के लिए Today for a meditation, हम लोग पहला शामुएल 1 Samuel, 30 अध्याय 30th chapter. उसका पहला और दूसरा वचन माइक में पढ़े। Let's read the first 2 verses in the mic. 1 पहला Samuel, शामुएल 30 अध्याय पहला 2 वचन। 1 Samuel chapter 30, 1 and 2. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the 3rd day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burnt it with fire and had taken the women captives that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. हिंदी में भी पढ़ लीजिए। आप लोग जाना पहचाना वचन हो सकता है। Maybe this is a known verse for you. हम लोग ये यूथ मीटिंग में हम लोग गलती कहाँ हुआ करके फर्स्ट जीए में देखा। In this youth meeting, in the first GA, we saw where it went wrong. यहाँ पर दाऊद का जिंदगी में गलती हो गया। Here we see that David made a mistake in his life. इसके कारण The reason for that, उसके कारण उसका पत्नी और बच्चे सब लूट गया, नहीं तो बंदुआई में चले गए। and because of that, his wife and his children, they all were taken as captives. हिंदी में पढ़िए, Read in Hindi. जल्दी जल्दी पढ़ना। मेरे साथ आप लोग ध्यान देने से हम लोग कैसे आशीष खोता है उसको समझेगा और वापस आशीष कैसे मिलेगा वो भी आपको बता के देगा। If you listen carefully and you'll be along with me, you'll be able to understand how we lose our blessings and how we can receive back our blessings. तीसरे, आप लोग एक समय अच्छा पवित्र आत्मा पाए लोग होंगे। Maybe there was a time that you have received a good Holy Spirit. पवित्र आत्मा पाए, अन्य भाषा बोले और वरदान चमके हुए जवान बच्चे आज सब कुछ खो के बैठे होंगे। Many youths maybe who had got the anointing, what God gives, and who were shining much, today they are just sitting simply. लेकिन ये नष्ट किया आशीषों को वापस लाने का दिन है आज। But today is the day to get back all the lost blessings. दाऊद ने जो कुछ नष्ट किया था सब वापस लाया। Whatever David had lost, he had got everything back restored. हिंदी में पढ़िए 30 का पहला और दूसरा वचन।
Please read 1 Samuel 30 verses 1 and 2 in Hindi. जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तब उन्होंने ये लीजिए ना, इधर से माइक्रोफोन ले लो। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। किसी को मारा नहीं, लेकिन सब लोगों को बंधुआई करके लेके गए। They did not slew anyone, but they took everybody as captives. यहाँ पर हम पढ़ते समय पत्नी और बच्चों का बारे में पढ़ते। Here we see about his wife and his children. आत्मिक रीति से पत्नी और बच्चों का अर्थ क्या है? In the spiritual way, what is the meaning of wife and children? नीति वचन 19 का 14 पढ़ते समय When we read Proverbs 19:14, पर बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर का दान है। we see that a wise woman is from the Lord. घर और धन पुरखाओं के भाग से परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। परमेश्वर देने वाला गिफ्ट नहीं है तो दान है, यहोवा से मिलने वाला चीज है। This is a gift from the Lord. हमें परमेश्वर बुलाने के बाद हमें परमेश्वर बहुत सारे आशीषें दिया, After God has called us, He has given us many blessings. लेकिन दाऊद को मिला हुआ आशीष अमेलेकी लोग लेके चले गए। But the blessings that David had received, the Amalekites had taken it. ये अमलेकी लोगों का बारे में आप लोग जानते हैं। You know about the Amalekites. इन लोग मिस्र से जब इस्राएली लोग निकल के आया मूसा के समय में इन लोग लड़ाई किए लोग हैं। When the Israelites left Egypt and they were coming, this is the group that fought with Moses and the people. ये आत्मिक हमारा जिंदगी का बढ़ोतरी का खिलाफ में लड़ने वाला एक शक्ति है। This is a power that fights against our spiritual life. हम लोग आगे जाने के लिए इन लोग रोकते हैं। They will not allow us to press forward. कनान में पहुंचने नहीं देगा। They won't allow us to reach Canaan. लेकिन परमेश्वर लड़के जय दिया। But Lord fought for them and gave them victory. प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God's name. ये बच्चे किसको दर्शाता है? What do these children denote? पढ़िए वचन भजन संगीता 127 का 3 वचन पढ़ते समय When we read Psalms 127 verse 3, बच्चों का बारे में लिखा, ये परमेश्वर का ये गर्भ का फल है करके लिखा। we see that children are the fruit of the womb. पढ़िए वचन। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। पढ़िए 127:3 भजन संगीता 127 का 3 वचन। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ये गर्भ का फल है करके कहा। It is said it is a fruit of the womb. आत्मिक जिंदगी में जो दाऊद का बच्चों को लेके गया, ये प्रभु ने हमारे लिए जो आत्मिक फल दिया वो फलों को नष्ट करता, उसको दर्शाता। In the spiritual life, they took away David's children. It shows that they have taken away our spiritual fruit. मन फिराव का फल है There are fruits of repentance. और आत्मा का फल है, There are fruits of the spirit, ओंठों का फल है। fruit of the lips. ये सब फल का बारे में वचन में लिखा। About all these fruits we see in the word of God. आज परमेश्वर का लोगों का जिंदगी से सारा फल को अमलेकी लोग लूट के लेके चले गए। Today the Amalekites have robbed all these fruits from the life of the children of God. मन फिराव का फल नहीं है, There's no fruits of repentance. आत्मा का फल नहीं है, There is no fruits of the spirit. ओंठों का फल भी नहीं है। There is not even the fruit of the lips. जब दाऊद का जिंदगी में क्यों ऐसा हो गया? And in David's life, why did such a thing happen? अब लोगों में कोई बता सकते तो बताइए जल्दी। Can anyone say quickly? क्यों दाऊद का जिंदगी में ऐसा हुआ? Why such a thing happened in the life of David? क्यों परमेश्वर जंगल में दाऊद को संभालता था, शेर और बालू से संभाला, ये परमेश्वर क्यों दाऊद का परिवार को संभाला नहीं? In the wilderness, God preserved David. He preserved David from the lion and from the bear. Then why could not He preserve the family of David? आज आप लोग सब परेशान है। पास्टर जी मैं अच्छा था, मैं इतना अच्छा लड़का था,
आज मेरा दशा ऐसा हो गया, मैं शून्यता में। Today many of you are worried, Lord, I was in such a passage, I was in such a good condition, but today everything is gone. I've come to this condition. इसका कारण क्या है? What is the reason for that? बताइए, Tell. क्यों दाऊद का जिंदगी में ऐसा हो गया? Why did such a thing happen in the life of David? इसको जानने के लिए हम लोग पहला शामुएल 27 अध्याय का पहला वचन पढ़ना पड़ेगा। To understand this, we must read 1 Samuel 27:1. पढ़िए। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश से किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God's name. ध्यान दिया कुछ आप लोग? Did you listen what he read? और एक बार पढ़ो, ध्यान देना पढ़ते समय, और आपका मन को इधर उधर जाने मत दीजिए। आप लोग वचन में ध्यान दीजिए। When they read the verse, you must pay attention. You must not lose your attention. तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God's name. एक समय ये दावीद ये बात कबूल करता था, ये शेर और बालू से बचाया परमेश्वर, मुझे गोलियत से आज से भी बचाएगा। At one time, David confessed, saying that the God who preserved me from the lion and from the bear, He will also preserve me from the hand of Goliath. लेकिन अभी दावीद क्या बोलता है? But now, what does David say? 17 अध्याय में दावीद बोला कि शेर और बालू का मुंह से बचाया परमेश्वर, गोलियत का मुंह हाथ से भी बचाएगा। In 17th chapter, David who said that God who preserved me from the lion and the bear, He'll also preserve me from the hand of Goliath. 17 का 37 पढ़िए। 17:37. फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, बस उतना बस है। इधर एक कबूल करता है, शेर और बालू से बचाया परमेश्वर, ये गोलियत का हाथ से भी बचाएगा। Here he makes a confession, the Lord who delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will also deliver me from Goliath. लेकिन जिंदगी चलते रहे, But as the days went on, दाऊद जंगल में भागते रहा, David went on escaping into the wilderness, शाऊल उसका पीछे पड़ते रहे, and Saul was going on pursuing him. और दौड़ते दौड़ते थकने के बाद And as he kept on running and becoming धीरे weary, धीरे दाऊद का भरोसा परमेश्वर से उठ गया। gradually David lost his hope from the Lord. अभी क्या बोलता है? Now what does he say? वो अपना मन का सोच के मुताबिक चलना शुरू कर दिया, He started to walk according to his thought. है ना? उन्होंने क्या सोचा? What did he think? उन्होंने सोचा मैं फिलिस्तियों का बीच में जाके रहेगा, He thought, I'll go and live amidst the Philistines. वहां शाऊल मुझे ढूंढेगा नहीं, मैं उधर बचेंगे। There Saul will not come seeking after me and I will escape. ये फिलिस्ती लोग कौन है मालूम है आपको? Do you know who are these Philistines? अब्राम ने खोदा हुआ सारे कुआं को मिट्टी से भरा हुआ लोग हैं इन लोग। These are the people who filled all the wells with mud which Abraham had dug. पढ़िए वचन, उत्पत्ति का किताब 26 अध्याय, Genesis 26th chapter, उसका 18 वचन पढ़िए। verse 18. तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। उतना बस है। आप 15 वचन पढ़ लो। Verse 15. इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। देखो, उसको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। Philistines had stopped all the wells. ये कुआं किसको दर्शाता? What does this show? प्रभु का आशीषों को दर्शाता। It shows the blessings of the Lord. अभी बचने के लिए दावीद कहाँ जाके बैठा? Now to escape, where has David gone to be? बोलिए, Say, कहाँ जाके बैठा? where has he gone?
फिलिस्तियों का बीच में जाके बैठा है। in the midst of the Philistines. हम लोग नीति वचन पढ़ते समय When we read in Proverbs, वहां पर सालमन क्या बोलता, what does Solomon say? अपना समझ का सहारा ना लेना, Trust not upon thine wisdom, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। but with all your heart you believe upon the Lord. तीसरा 3:5 पढ़िए। 3:5. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Trust in the Lord with all thine heart. लेकिन हम लोग थोड़ा समय के लिए भरोसा रखते हैं, उसके बाद में अपना मन के अनुसार चलते। But for some time we trust in the Lord, and after that we walk according to our ways. ऐसा एक कहानी है। There is a story like this. एक बार एक आदमी को मच्छर बहुत काटता था। Once a man was there who had so much of mosquito bites. मच्छरदानी बांध के वो मच्छरदानी के अंदर सोने लगा। He tied the mosquito net and he slept within. देखा सुबह उठने से मच्छरदानी के अंदर भी मच्छर घुसता है। Later in the morning he found out that even inside the mosquito net the mosquitoes had entered. उन्होंने सोचा ये मच्छर को मैं धोखा देगा। He thought that I will deceive these mosquitoes. दूसरा दिन मच्छरदानी जैसे सोने के लिए बांधता वैसा बांधा। But the second day, before he was about to tie the net, अब लोग बताइए वो क्या किया? tell what did he do? खटिया का नीचे जाके सो गया। He went and slept under the bed. कितना बड़ा बुद्धिमान है, आप लोग समझ लिया होगा, You would understand how great, how a wise person he is. है ना? कभी कभी हम लोग परमेश्वर से भी बड़ा बुद्धिमान हो जाते हैं। At times we also become extra wise than God. परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान लोग एक हालेलुया बोलिए। All the people who are much wiser than Lord, shout an hallelujah. कोई नहीं है, Nobody. हमारा परमेश्वर ही बुद्धिमान है, वही हमें चलाने दो करके हम सौंपना चाहिए। Only our Lord is all wise, and we must surrender himself to lead us. इंसान को जंगल पसंद नहीं है, Man does not like the wilderness. है ना? कितना दिन जंगल में जीना। How many days to live in this wilderness? बपतिस्मा के लाल समुद्र के बाद परमेश्वर इस्राएलियों को कहाँ लेके आया था? After the Red Sea, where did the Lord lead the Israelites? जंगल में लेके गए। Into the wilderness. यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाने के बाद आत्मा कहाँ लेके गया? After Jesus Christ received the water baptism, where did the Spirit of God lead him into? बोलिए, जंगल में। Into the wilderness. उधर हमें सिखाने का जगह है वो। That is our teaching place. लेकिन सिखाते समय में हम लोग थक जाता है। But when God teaches us, we become tired. है ना? हम तो इंसान है ना। Because we are just man. पास्टर जी कितना दिन तक इंतजार करना है? Pastor Ji, how long should I wait? ये दुष्टात्मा पाया शाऊल का नीचे कितना दिन रहना है? How long should I be under this Saul who is possessed with an evil spirit? 27 अध्याय में दाऊद बोलता है एक ना एक दिन शाऊल का हाथ से मैं मर जाऊंगा। In 27th chapter, David says that someday or the other I will perish by the hand of Saul. आप लोग शैतान से परेशान हो गए? Are you very troubled because of Satan? और अपना बुद्धि में आप लोग चलना शुरू कर दिया? Have you started to walk according to your own mind? परमेश्वर का बच्चा को रहने का एक स्थान है। There is a place for a child of God to be. परमेश्वर एक जगह ठहराया उसके लिए। God has ordained a place for him. उस जगह में वो रहेगा तभी उसका पालन पोषण सुरक्षा प्रभु कर सकता है। If he will be in that place only, then God can nourish and cherish him. प्रभु बोलने वाला जगह में हम नहीं रहेगा, प्रभु हमारा जरूरतें पूरा नहीं कर सकते। If we will not be in the place where the Lord tells us, then God will not be able to fulfill our requirements. आज हमारे बच्चों को परमेश्वर क्यों आशीष नहीं कर पा रहा है? बताइए। Tell today why God is not able to bless our children. बोलिए कारण क्या है? What is the reason? Tell. कारण आज पता करना चाहिए। Today we must find out the reason. हम लोग व्हाइट ड्रेस पहन के प्रभु के पास आता है। We are clothed in white dress and we come to the Lord. लेकिन हमारा दिल, but our heart काला है, is black. परमेश्वर क्या देखता है? What does the Lord see? faith home में एक जिंदगी है, बाहर एक जिंदगी है। There is one life inside the faith home and another life outside the faith home. परमेश्वर हमें पालन करना है तो if God must nourish us, परमेश्वर बोलने वाला जगह में हम रहना चाहिए। we must be in the place where the Lord tells us to be. एलिया को परमेश्वर ने कहा, God told Elijah, तो क्या करो? what must you do? केरेत में जाओ, go to Cherith उधर ही रहो, and be there only, उधर का पानी पियो,
and drink from that brook लेकिन only. तुझे पालन करने को मैं कौवा को बोला। But I have told the ravens to feed you. आप लोग रहने से जाते थे? If you were in that place, would you go? जाएगा बोलने वाला हाथ उठाए। Those who say, I will go, lift up your hands. एक आदमी भी नहीं, एक थोड़ा Not- उठा not के even नीचे a- कर दिया। Not even a single person. क्यों? Why? कौवा किसी को कुछ कभी देता नहीं है। A crow or raven will never feed anybody. हो सकता है तो दूसरों से छीनेगा, If possible, it will snatch from others. लेकिन परमेश्वर एलिया को बोलता, मैं कौवा को आज्ञा दिया तुमको भोजन देने को। But God tells Elijah, I have commanded the ravens to feed you. एलिया मान के उधर गया, And Elijah, he accepted, he went there. है ना। हमारा सुरक्षा कहाँ है वो हमें मालूम नहीं, हमारा परमेश्वर को मालूम है। We don't know where our safety is, but our Lord knows it. लेकिन हम अपना बुद्धि को चलाएंगे ना, जहां रहना नहीं चाहिए वहां रहेगा, हमारा सारे आशीष चले जाए। But if we will use our wisdom, we will be in the place where the Lord does not want us to be, and all our blessings will be lost. प्रभु ने दिया सारे आशीषों को नष्ट कर देंगे। We will lose all the blessings that God has given us. अच्छा, आप लोगों का आशीष कैसे गया Now, how have you lost your blessings? बताइए। Tell. जहां रहना वहां रहा नहीं। You have not been in the place where you're supposed to be. सबसे पहले माँ बाप खुश होने वाला जगह, First of all, the place which the parents are pleased with. नहीं है तो सबसे पहला मम्मी पापा खुश कब हुआ मालूम है? Do you know when was the first time your parents were pleased? आप जब जन्म हुआ, When you were born. आपको देख के खुशी मनाए, मिठाई बांटा गया। When they saw you, they were so happy, they distributed sweets. उसके बाद After that, जब आप पलटी मारा, when you started to crawl, जब आप चलने लगे, ये सब उनका खुशी का समय था। when you started to walk, all these were the time of their... लेकिन आज मेरा मम्मी पापा मुझसे खुश से बोलने वाला बच्चे हाथ उठाइए। But the children who can say, today my parents are pleased with me, lift up your hands. देखिए, एक ही लड़का है, लड़कियों में Only one boy. मम्मी पापा से पूछेगा तभी पता चलेगा। Only if I ask your parents, then I will know. अब और एक प्रश्न, Another question. आपका बच्चे आपके जैसा आपके साथ करेगा तो आप क्या करोगे? If your children will do like this with you, what will you do? बोलिए। Tell. हाँ, क्वेश्चन अपने अंदर ही डाल दो। You ask the question to yourself. उन लोग जब हमें जन्म दिया, उन लोग खाया नहीं, हमें खिलाया। At the time when you were born, they did not feed themselves, but they fed you. आपका हाथ बढ़ने से, पैर बढ़ने से वे लोग आनंदित हुआ। When your hands and your legs grew, they were so happy. कई माँ बाप मेरे पास आके बोला है, So many parents have come and told me, पास्टर ऐसा बच्चा नहीं रहने से अच्छा था। Pastor, it was good if I had not such a child. कई माँ बाप मेरे पास आके रोता है, हमें बच्चा चाहिए। So many parents come and cry to us saying, we need a child. क्या परेशानी है बताओ? बच्चा जिसको है वो भी परेशान, जिसको नहीं है वो भी परेशान। See what a problem. Those who have children, even they are in trouble. Those who don't have, even they are in trouble. आपका माँ बाप लोग आपसे परेशान है? Are your parents disturbed? आप because आपके अंदर ही एक क्वेश्चन मार्क करो। You ask a question to yourself. एक पेड़ का जिंदगी को देखो। Look at the tree. पेड़ में फल होता है, There are fruits in a tree, लेकिन पेड़ नहीं खाता। but the tree will not eat it. पेड़ का फल पेड़ नहीं खाता। A tree will not eat its fruits. तब आपका जिंदगी का प्रॉब्लम, आप अपने को खुश रखना चाहते, दूसरों को खुश रखना नहीं चाहता। The problem of your life is that you want to please yourself, you don't want to please others. कुछ लड़का लोगों को देखने से दोनों साइड बाल उड़ाया हुआ। When I see some boys, their hairstyle is like that. On either side, their hair is missing. पूछने से बोलेगा वो मेरा मर्जी है। If you ask them, they'll say, that is my wish. मैं वैसे बच्चों से पूछता, आपका मम्मी पापा के पास आज जाके, नहीं तो यूथ मीटिंग के बाद में जाके पूछना, मम्मी पापा मेरा बाल काटना आपको खुश है क्या? I say such children, after the youth meeting, go home and ask your parents, Mommy and Daddy, are you happy with my hairstyle? अपना भाई बहन से पूछिए, मैं ऐसा करता, तुम खुश है क्या? Ask your brothers and sisters, I'm doing like this, are you happy with that? आप किसके लिए जी रहे? Why are you living? परमेश्वर खुश है क्या? Is God happy with you?
संत लोग खुश है क्या? Are the servants of God pleased with you? कलीसिया संडे स्कूल टीचर्स खुश है क्या? Is the church Sunday school teachers pleased with you? फिर आपका जिंदगी से मतलब क्या रहा? Then what is the meaning of your life? इसलिए भजन संगीता 1 पढ़ते समय Therefore, when we read the first psalm, वहां पर 3 संगति का बारे में लिखा। here we see about 3 kinds of fellowship. दुष्टों का संगति, The fellowship of the wicked, पापियों का मार्ग, and the way of the sinners, ठट्ठा करने वालों का मंडली। and the seat of the scornful. पढ़िए वचन। Read the verse. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और फिर क्या करना चाहिए? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है। बस, प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God's name. इधर 3 बात मना करके रखा। Here we see 3 things are denied. एक झुंड के साथ खड़ा नहीं होना, You must not stand with one group. दूसरा झुंड के साथ बैठना नहीं, You must not sit with another group. तीसरा झुंड के पास साथ चलना भी नहीं। You must not walk with another group. ये तीनों झुंडों में हम जाएंगे, If we will go into these 3 groups, क्या होगा आप बताइए? tell what will happen. क्या होगा? What will happen? बोलिए क्या होगा? Tell what will happen. आपका आशीष सब चले जाए, You will lose all your blessings. है ना? आप सोच के देखिए, Think and see. आप जब पवित्र आत्मा एक समय पाया था वो अनुभव और दोस्त मिलने के बाद जो अनुभव है वो अनुभव। Look at the experience at the time when you got the Holy Spirit and the experience of receiving a new friend. आज आप एक नया फ्रेंड को अपनाना। Today you must receive a new friend. धरती का सारा फ्रेंड्स को छोड़ना, You must leave all the friends of this world. एक ही दोस्त होना आपके You लिए। must have only one friend. बाइबल में लिखा, जो बहुत दोस्तों को अपनाता वो नाश हो जाएगा। The word of God says, he that has many friends, he will perish. नीति वचन 18 अध्याय In Proverbs 18 chapter, उसका 24 वचन पढ़िए। verse 24. मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, मित्रों का बढ़ाने से नाश होगा। If you have more friends, you will perish. कितने लोग नाश होना चाहते हैं? How many of you want to perish? मित्र लोगों को बढ़ाने से क्या होगा? If you have more friends, what will happen? कितना फ्रेंड्स है आपको अभी मोबाइल में? How many friends do you have in your mobile? बोलिए। Tell. प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God's name. 2 दोस्त थे, There were 2 friends. उसमें से एक को पेड़ चढ़ने आता था, दूसरों को नहीं आता था। In that one friend knew how to climb the tree, the other didn't. दोनों मिलके जंगल में होके जा रहा है। Both of them were walking in the jungle. जाते समय एक भालू सामने से आए, As they were going, they confronted a bear. दूर से देखा उसको They saw it afar off. और दोस्त दूसरों को बोला, देखो भालू आ रहा है। This friend told the other friend, see, the bear is coming. जब वो नजदीक आने से पहले एक दोस्त क्या कर दिया, जिसको पेड़ चढ़ने आता था पेड़ में चढ़ के बैठ गया। Before the bear came closer, the one who knew to climb the tree, he quickly climbed upon the tree. दूसरा दोस्त सोचा कि अभी क्या करूं। Now the other friend thought, now what should I do? उसको मन में आया कि मैं श्वास बांध के मरा जैसा लेट जाएगा। Then he got an idea. He thought that I will just hold my breath fast and I will just lie down. भालू मरा हुआ चीज नहीं खाता है। A bear will never touch the dead things. अब जब भालू नजदीक आए, When the bear came close, आंखें उसका चेहरा में कान में सब सूंघने लगा। it came near and started to sniff at near his ears and at his face. उसके बाद भालू चले गया। Then the bear left him and went away. दोस्त ऊपर से नीचे आया Then that a friend came down from the tree और पूछा, तुम्हारा कान में भालू कुछ फुसफुसा रहा था, क्या बोल के गया? and he said and he asked, the bear said something into your ears. What did the bear say? क्या बोला मालूम है? Do you know what he replied? तेरे जैसे दोस्त के साथ दोस्ती नहीं करना। He said, the bear said, you must not have friendship with such a friend. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, दोस्त लोग सब थोड़ा समय खेले, उसके बाद वो छोड़ के भाग जाएगा। Dear child of God, all your friends are only for a short time and at one time they will leave you and go away. आप लोगों का जिंदगी में आज दुष्टों का युक्ति है, दुष्टों का दोस्ती है।
आज आप निर्णय करना चाहिए उसको छोड़ने को। Today in your life, if there is any counsel of the ungodly, any fellowship of the ungodly, you must make a decision to leave them. कुछ बच्चों को मजाक करना बहुत पसंद होता है। Some children like to crack jokes. बैठ के कुछ लोगों का मजाक उड़ाते लगता है। They'll just sit and they will scorn and mock at others. कुछ लोग लंगड़ा चलता होगा उसका जैसा वो भी चल के दिखाएगा। If there is a lame person, they will imitate like that person. कुछ लोग अंधे लोगों के उसका मजाक उड़ाएंगे। Some people will imitate like the blind people. ऐसा ही एक लड़का हमारा गांव में था। Like this, there was such a boy in our village. उसका दादी का दोनों आंख नहीं दिखता था। His grandmother was blind in both her eyes. बार बार उसको तंग करने का, He used to irritate her again and again. पीछे से जाके खींचना। He will go behind and he will pull her. जवान न है। He was a youth boy. क्या हुआ मालूम है Do उसको? you know at last what happened? अचानक एक दिन वो छोटा सा एक बॉम्ब पानी में मछली पकड़ने को डालने को गया। ये घटना है, ये कहानी नहीं। This is not a story, it is a true incident. वो बॉम्ब को जला के पानी में डालने से पहले हाथ में फट गया। He tried to start a bomb and put it into the river. Before that, the bomb bursted in his hand itself. जवानी उम्र में उसका दोनों आंख उड़ गया। In his youthhood, he lost his eyesight. यदि आप आज तक ठट्ठा करने वालों का लोगों के साथ बैठ के ठट्ठा करके मजा लेता है, आज निर्णय करने का दिन है। Today, if you sit in the seat of the scornful and you mock at others, today is the day of a decision. जहां रहना नहीं उधर रहेगा, आग आपको जला देगा। If you will be in the place where you should not be, the fire will burn you. आपका संपत्ति को आग जला देगा। And the fire will burn your property. क्यों परमेश्वर ऐसा अनुमति दिया मालूम है? Do you know why God allowed this? नहीं है तो दावीद फिलिस्तियों का बीच में से निकलेगा नहीं। Or else David will never leave from the midst of the Philistines. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर कई बार आपका जिंदगी में कष्ट दिया। क्यों दिया मालूम है? Dear child of God, many times God had allowed sufferings in your life. Do you know why? कहीं दुख दिया, He had allowed many sorrows. Why? कई बार आप आंसू बहाना पड़ा। Many times you had to shed tears. कारण क्या है बोलिए? Tell what is the reason? आप रहने का जगह सही नहीं है। Because the place where you were was not correct. उस जगह से आप निकलना पड़ेगा। You have to leave that place and come out. दुष्टों का युक्ति में नहीं चलना। You must not walk in the counsel of the ungodly. पापियों का मार्ग में खड़ा नहीं होना You चाहिए। must not stand in the way of sinners. उसमें आपका जिंदगी में भी पाप आएगा। If you do so, even you will become a sinner. और ठट्ठा करने वालों का मंडली में बैठना नहीं। You must not sit in the seat of the scornful. आपका जिंदगी में पाप आएगा। Then you will also become a sinner. प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God's name. मैं आखिरी में बताऊंगा दाऊद इसको वापस कैसे लाया। Towards the end, I will tell you how David restored back. नेक्स्ट अपना सब कुछ खोया और एक व्यक्ति को दिखाता। Next, I will tell about another person who lost everything. ये दाऊद आखिरी में अपना जितना चीज नष्ट हुआ सबको वापस लौटा लिया। David, towards the end, whatever he had lost, he got everything back. वो लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपसे। At the end, I'll explain that to और एक you. व्यक्ति आपको मालूम है नया नियम है, आप बताइए। You know another person in the New Testament. Tell who that is. अपना सब कुछ लॉस किया वाला He's the person who lost everything. कौन है? उड़ाऊ पुत्र। The prodigal son. उड़ाऊ पुत्र पिता को छोड़ के दोस्ती यारी में चले गए, The prodigal son left his father and went along with his friends. है ना? आज दुनियादारी जवानों को बहुत अच्छा लगता है। Today the youths, they like the world and worldliness. देमोस का बारे में पौलुस तीमुथियुस को लिखता। About Demas, St. Paul writes to Timothy, देमोस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ के चले गया। Demas had loved this present world and he has forsaken me. पढ़िए दूसरा तीमुथी 4:10। 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, क्रेसकेंस गलातिया को। बस उतना बस। देमोस ने इस संसार को प्रिय जाना। For Demas had loved this present world. आप लोग किसको ज्यादा प्यार करते बोलिए? Whom do you love much? Tell. संसार को, The world, संसार की चीजों को। the things of this world. यूहन्ना का पत्री में क्या पढ़ते? What do we read in the epistle of John? पहला पत्री 2:16 पढ़िए। 1 John 2:16. 1 John 2:16. पर 15 से पढ़िए। 15 onwards. तुम न तो संसार से
और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज किस चीज से प्रेम है? Today, what do you love much? इलेक्ट्रॉनिक्स। Electronic items. 3 दिन पहले 3 days before, केरला में जीवा करके बोलने वाला एक लड़की, in Kerala, there was a girl named Jiva. 10वां क्लास में पढ़ रही थी। She was a class 10 student. क्लास में ये प्लस मार्क लेती थी। She used to secure A+ marks in her education. वो मोबाइल का एडिक्शन हो गया। She became a mobile addict. एडिक्ट होने के बाद में उसको पढ़ाई थोड़ा कम होने लगा। After becoming an addict of the mobile, her studies declined. एक दिन जब माँ बाप घर में नहीं थे, One day when her parents were not at home, उन्होंने एक चिट्ठी लिख के रखी। she wrote a letter. ये घटना 1 सप्ताह हुआ नहीं अभी। This incident is just a week old. उन्होंने लिख के रखा, मैंने YouTube का अधीन हो गया हूँ। She wrote that I have become addicted to YouTube. और कुछ गाना, बाहर का गाना का अधीन हो गया। I have become addicted to some outside songs. इसके वजह से मेरा पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगा। Because of this, my studies are not flourishing. मेरा बहन को मैं सलाह देता हूँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। I counsel my sister not to use the mobile. ये बोल के फांसी लगा दी। After writing this, she committed suicide. ये कहानी नहीं, पेपर में आया बात है। This is not a story. This is an incident that came in the newspaper. आज माँ बाप बोलता है, पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं। Today the parents tell, Pastor Ji, please pray, my child is not leaving the mobile. आप मोबाइल खरीद के देते हो, आप रिचार्ज करके देते हो, आप नेट डाल के देते हो, सब कुछ आप करके देने के बाद हम लोग इधर बैठ के प्रेयर करें। You buy them the mobile, you help them to get it recharged, you also give them internet connection. After doing all these things, we must sit here and pray for them. एक काउंसलर ने बताया, Once a counselor said like this, जैसे ब्रदर उदय कुमार ने बताया, as Brother Uday Kumar said, दुनिया में सबसे बड़ा नशा मोबाइल का नशा है। the biggest addiction in this world is the addiction of the mobile. इसका क्रूरता हमारे बच्चे नहीं समझ रहे। Our children don't understand its cruelty. ये नहीं बोलता हूँ मोबाइल इस्तेमाल मत करो, बात करने के लिए इस्तेमाल कर लो। I'm not saying don't use the mobile, you can use it to take calls. जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी इस्तेमाल करेगा सब कुछ मृत्यु कहलाएगा। But if you overuse anything, that will lead to death. शरीर में देखिए ना, When you look in the body, चीनी हमेशा खाते रहेगा, मीठा हमेशा खाते रहेगा, उसको चीनी का बीमारी आ जाता। if you will always keep on taking sugar, much sugar, then you will become a diabetic ज्यादा person. तेल इस्तेमाल करने से If you will use much oil, प्रेशर हो जाता है। you will have blood pressure. ज्यादा नमक इस्तेमाल करने से प्रेशर हो जाता If you use much salt, then you will have blood pressure. है। इस धरती का हर एक चीज ज्यादा होने से यदि हानिकारक है, तब ये मोबाइल क्यों हानिकारक नहीं है? Everything in this world, if you will overuse it, it is dangerous. Then why is not the mobile dangerous? आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, Maybe it is difficult for you to control it, लेकिन प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। but it's not difficult for the Lord. मैं जब मुल्लंड में थे, When I was in Mulund, वहां पर एक लड़की का बाप शराब पीता था, there a girl's father was a drunkard. और बांडुप में एक संडे स्कूल चलते थे। And at Bandup, there was Sunday school going on. वो बच्चा संडे स्कूल टीचर के पास आके बोली, That पापा girl- रोज शराब पीता और मारता है मम्मी को। That girl came and told her Sunday school teacher, my father drinks every day and he hits my mother. रोते हुए बोली। She came and said with tears. वो टीचर को दुख हो गया। The teacher became sorrowful. टीचर ने वो बच्ची को बताया, The teacher told the child, बेटी तुम्हारा पापा शराब पी के आने के बाद daughter, after your father comes home drinking, जब आप उनको खाना के बाद पानी जो देता है, after his food, when you give him water, आप वो पानी में उंगली डाल के प्रेयर करना, यीशु मेरा पापा का पीना बंद कर दो। you place your finger upon the water and you pray, Lord, help my father to come out of drinking. छोटी सी बच्ची है, A small child, 8 साल। maybe 8 years old. वो बच्ची जैसे टीचर बोला वैसा ही किया। As the teacher said, the child did like that. प्रेयर करके बाप को दिया। She prayed and gave it to her father. घटना क्या हुआ मालूम है? Do you know what happened? जितना शराब बाप पिया सब वॉमिटिंग कर दी। All the alcohol that her father has consumed, he vomited it out. उसके बाद से शराब का स्मेल से उसको वॉमिटिंग आता है। After that, he used to get vomiting by the smell of alcohol. एक हालेलुया बोलिए तो। Shouted hallelujah. प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God's name.
तब ये उड़ाऊ बैठा This बाप prodigal, से दूर चले गए। this prodigal son went far away from his father. ये दूर जाने के बाद क्या हुआ? After going far off, what happened? बोलिए, अच्छा वस्त्र गया, His good clothes went away. उसका जूता गया, He lost his shoes. उसका अंगूठी गया, He lost his ring. सब कुछ गया। He lost everything. बाप के पास वापस लौट के आके बोलता, मैं अभी तेरा बेटा खाने का लायक नहीं है। After he returns to his father, he says, I'm not worthy to be called as your son. दुनियादारी में खो जाने से If you get lost in the world and worldliness, हमारा स्वर्गीय पिता का बच्चा खाने का लायक हम नहीं रहेगा। we will not be any more worthy to be called as the child of a heavenly father. प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God's name. एक है अपना बुद्धि पर आश्रय किया दाऊद ने, उन्होंने सब कुछ नष्ट किया। One is David, who trusted upon his own wisdom and he lost everything. दूसरा है दुनिया में गया, सब कुछ नष्ट किया। Second is this person who went into the world and lost everything. आप लोगों को ये वचन सब मालूम है करके मैं उठा के पढ़ाता नहीं। Because you know all these verses, I'm not making you to read them. तीसरा, Thirdly, पुराना नियम में अब एक बहुत लोग हैं, लेकिन सब बताते जाएगा तो रात बीत जाएगी। in the Old Testament, there are many more such people. If I tell all of that, then the whole night will be spent. तीसरा और एक व्यक्ति को दिखाता है, वो लड़की का पीछे गया व्यक्ति, A third person, he went behind a girl. है ना। ये तीनों अभी भी चलता है। These three things are still happening. वो कौन है आप बताइए? Tell who was that person? वेरी गुड, सैमसन। Samson. उनका मम्मी पापा उनको समझाया। His parents made him to understand. पढ़िए वचन, Read the न्यायों verse. का किताब Judges, 14 अध्याय, 14th chapter, उसका पहला दूसरा वचन पढ़िए, verses 1 and 2, तीसरा वचन तक पढ़िए। till verse 3. सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्त्री स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्त्री स्त्री को देखा है, अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री है कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है ना। मनमानी का जिंदगी, A life of own will. एक बार जब बिगड़ जाएंगे, Once if we are spoiled, और बिगड़ते ही जाएगा, फिर we'll be keeping on getting spoiled. समझाने से समझेगा नहीं तो क्या करेगा? If they make them understand, if you don't understand, then what can we do? पहले दिनों में 5-6 बच्चे रहते थे। In the olden days, there were 5 or 6 children. मेरा घर में हम लोग 6 बच्चे थे। In our family, we were 6 children. अभी Now, एक सिंगल एक पीस है, a single child, एक ही बच्चा। only one child. वो बच्चा माँ बाप को बोलता, मैं जिससे चाहता उससे शादी नहीं करेगा, पंखा इधर है, मैं फांसी लगाए। And that child will say, if I don't marry the person whom I like, I will hang myself. ऐसा कोई बच्चा है? Any such child here? नहीं, कोई बोलेगा नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। No one will accept, that is the problem. है ना। आखिरी में ये शिमशोन दलीला के पास चले गया। Finally, this Samson went to Delilah. बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ गया कि पूरा बिगड़ गया। He becomes so much spoiled. आखिरी में क्या हुआ? Do you know what happened at the end? बोलिए। Tell. उनका दोनों आंख निकाल दिया गया। He lost both of his eyes. कौन निकाला मालूम है? Do you know who removed his eyes? फिलिस्ती लोगों ने निकाला। The Philistines. पढ़िए वचन, Read that verse. 16 अध्याय का, 16th chapter. न्यायों का किताब 16 का 21। Judges 16:21. तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। हाँ, है ना, अच्छा काम दे दिया। They gave him a good job. परमेश्वर का अभिषेक पाया व्यक्ति, He was an anointed person from the Lord. शत्रुओं के ऊपर काबू होने वाला व्यक्ति, He was a person who prevailed upon his enemies. एक गधा का जबड़ा से शत्रुओं को नाश करने वाला व्यक्ति, With the jawbone of an ass, he was the person who destroyed the enemies. परमेश्वर का अभिषेक उतरने वाला व्यक्ति, A person upon whom the Spirit of the Lord descended. चक्की पीसने लगा। Now he started to grind. लोग उसको देख के मजाक उड़ाते थे। The people started mocking at him. परमेश्वर का बच्चे,
a child of God. आपको मालूम है एक झुंड शैतान आपको देख के मजाक उड़ाता है, Do you know group of devils? They mock at you. आपका जिंदगी को देखकर मजाक उड़ाता है, They mock looking at your life. आपका आंखों को अंधा कर दिया है, They have blinded your eyes. आप मरने से कहां जाएगा आपको मालूम नहीं। After you die, where you will go, you don't know. दूसरा कोरिन्थी 4:4 पढ़िए। 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर डाला, The God of this world has blinded the minds of them. इसलिए हमारा बच्चा गलती को नहीं समझ पा रहा है। Therefore, our children are unable to understand their mistakes. लेकिन प्रभु यीशु क्यों आया मालूम है? But do you know why Lord Jesus Christ came? अंधों का आंखों को खोलने के लिए आया। To open the eyes of the blind. ये शिमशोन बहुत दुखी हो गया। The Samson become much sorrowful. एक समय एक अभिषेक उतरता था, वो अभिषेक नहीं है अभी। Once upon a time, anointing used to descend. Now it is not there. कोई जय नहीं पा सकता था, अभी वो शक्ति नहीं। एक समय उससे कोई जय नहीं पा सकते थे। At one time, nobody could prevail upon him, but now that is not there. उन्होंने क्या किया मालूम है? Do you know what he did? आखिरी में प्रभु को याद किया, Towards the end, he remembered the Lord. परमेश्वर से बोला, He told the Lord, आखिर इस वक्त at this final moment, मुझको शक्ति दो, give me power. मेरा शत्रु का पलटा चुकाना है मुझे। I want to take revenge or vengeance upon my enemy. पढ़िए 16 अध्याय का 28 वचन पढ़िए। 16:28. तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। वो अभी चाहता है मेरा शत्रु को मैं पलटा कर। Now he desires that he wanted to avenge his enemies. आपको शैतान तमाशा उड़ा रहा है, पलटा Satan- देना चाहते हो? Is Satan mocking at you? Do you want to be avenged of him? आपका नष्ट किया अनुभव को वापस पाना चाहते हो? Do you want to receive back your lost blessings? क्या करना है करके बोल देता हूँ। I will tell you what you must do for that. सिंपल बात बोल के खत्म करेगा। I will conclude with a simple matter. उन्होंने रोया, They wept. ये आंसू का शक्ति आप लोग जानना चाहिए। You must understand the power of tears. बाइबल में यीशु रोया करके लिखा, आशा करके नहीं लिखा। In the Bible, we see that it is said Jesus wept, but not that Jesus laughed. पढ़िए वचन, Read that verse. पहला शामुएल 30 अध्याय 1 Samuel 38th chapter, उसका 6 वचन पढ़िए। verse 6. तब दाऊद बड़े संकट में पड़ा। 4 वचन। Verse 4. तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। क्रय देना पड़ेगा, वापस पाना है। If you आप want to, खोया हुआ शक्ति, आपका आशीष वापस पाना है। if you want to receive back your lost blessings, you must pay the price. क्या करना पड़ेगा? क्रय देना पड़ेगा। You must pay the price. क्या है क्रय? What is the price? खस के रोना, You have to lift up your voice and weep. खस के रोना चाहिए। You lift up your voice and weep. आज कितने लोग रोए? हाथ उठाइए। Today, how many of you shed tears? Lift up your hands. हालेलुया बोल दो। Shout in hallelujah. रोने में आशीष है। There is a blessing in weeping. रोने का तराई में जाने के बाद आशीष ही आशीष उपजाएगा करके लिखा। It is said, after you go into the valley of tears, there will be blessings upon blessings. रोना चाहते हैं आप? Do you like to weep? आप इंसान के पास बहुत रोया होगा। Maybe you have wept a lot before a man. अन्ना भी एलखाने के पास बहुत रो के देगी। Even Hannah tried a lot by weeping before Elkanah. राहेल भी याकूब के पास रोई। Even Rachel wept a lot before Jacob. उन लोग कुछ नहीं कर पाए। But they were not able to help them. कौन मदद किया? Who helped them? जब प्रभु का घर में जाके अन्ना रोई, When Hannah wept in the house of the Lord, उसके बाद वो दुखी नहीं रही। after that she was never sad. रोने को मन नहीं है हमको, प्रभु के पास रोने को मन नहीं है। You don't have the heart to weep before the Lord. जितना बल है उतना उन्होंने रोया। They wept with all their power. उनका शक्ति रोने में ही चले गए। All their power went away in weeping. उसके बाद क्या किया मालूम है? Do you know what happened after that? परमेश्वर को याद किया। Then they remembered the Lord. पढ़िए वचन
6 वचन, 6th verse. 30 का 6, 30 verse 6. तब पहला सामुएल 30 का 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा हाँ, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परमेश्वर को याद करके याव बांधा। But David encouraged himself in the Lord. आपको अभी सब लोग दोष लगाएगा। Now maybe everybody will accuse you. सेवक लोग बोलेंगे तू ठीक नहीं है, Servants of God will say you're माँ not बाप correct. बोलेंगे ठीक नहीं है। Parents will say you're not right. हाँ, सब लोग दोषी ठहराएगा, All will blame you. क्योंकि आप जहां रहना चाहिए उधर रहा नहीं। Because where you must be, you have not been in that place. लेकिन एक बात याद रखना, But remember one thing, आपका नष्ट की आशीष को देने के लिए शक्तिमान एक परमेश्वर आज भी जीवित है। there is an able God who is even alive today to give back your lost blessings. मेरे घर में मैं पहले ये चर्च में आया, In my house, I was the first person who came into this faith. मेरे कारण ही पूरा परिवार इस चर्च में आए। Through me only, our whole family came into this faith. आप यदि सही हो जाएंगे, If you will become all right, आपका माँ बाप आपका पूरा परिवार इधर आएगा, your parents, your whole family will come here. आपका जिंदगी को देख कर आएगा, आपका जिंदगी को देख कर आएगा। They will look at your life and they will come. क्यों हमारा माँ बाप आना नहीं चाहते? Why your parents don't want to come? कई पति लोग पत्नी को बोलेगा तुम जाके क्या फायदा है बताओ। Many husbands tell their wives, what is the point of you going तुम there? जाने के बाद भी इतना झगड़ा कर दिया है, मैं जाने बिना रहने वाला इतना शांत बैठता है, तुम जाके क्या फायदा। Even after you go there, you come home and fight a lot. I am the person who don't go there. I'm so humble. What is the point then? जवान बच्चे आप संडे स्कूल आते हैं, चर्च आते हैं, आपसे मम्मी पापा कितना सुख में रहते हैं। Young children, you come to church, you come to Sunday school, but more than you, your parents are so much in pleasure. आज कितने लोग रोना चाहते हैं? Today, how many of you want to weep? ऐसा बेकार नहीं रोना, You must not weep without any point. अपना पहला अवस्था को याद करना चाहिए। You must remember your former estate. जो नया से आया उन लोग प्रभु से मांगिए, प्रभु ये शक्ति जो सही है मुझे भी चाहिए। All the new children, you must ask the Lord, Lord, I want this experience. एक बार एक टायरिंग मीटिंग एक सिस्टर चला रही थी। Once a sister was conducting a tarrying meeting. एक नया आत्मा के बैठा, A new soul came and sat. बैठ के वो देख रहा था, आंख खोल गए। He came and sat and he opened his eyes and is watching. सब लोग थाली बजा रहा है, All are clapping the hands. वो भी थाली बजाने लगे। उन्होंने सोचा इन लोग सब थाली बजा रहा है, He also started to clap his hands looking at them. वो थोड़ा थाली बजा के बंद कर दिया। For some time he clapped his hands and he stopped. उनको दोनों हाथ में दर्द शुरू हो गए। Both his hands were paining. देखा इन लोग शुरुआत से अभी तक थाली बजाना बंद नहीं किया, But he saw these people are not stopped clapping till. इनको हाथ क्यों दर्द नहीं हो रहा है? Why their hands are not paining? उन्होंने बोला कुछ तो है इसमें। Then he thought there is something in this. वो भी घुटना में बैठे He also sat upon his और वो knees प्रेयर किया, and he started to pray. बोला प्रभु ऐसा एक शक्ति है मुझे भी चाहिए। Lord, there's such a power and I need it. इतना बड़ा एक अभिषेक उतरा, ऐसा उठा के फेंका, टारी मीटिंग खत्म होने से भी उसका अन्य भाषा खत्म नहीं हुआ। Such a mighty anointing fell upon him and he was thrown away. And even at the tarrying meeting got over, but his unknown tongues did not stop. आप लोग आंख बंद करके प्रभु से मांगिए, प्रभु ये क्या है? You must close your eyes and ask the Lord, Lord, what is this? मैं जब 12 साल का था, When I was 12 years old, मैं एक कन्वेंशन में गया। I went into a convention. मैं छोटा लड़का हूँ, I was a small boy. आसपास में देखा सब लोग आनंदित हो रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। I saw all around everybody were rejoicing, they were clapping hands. थोड़ा देर में बैठने के बाद After some time after that, अंदर ही अंदर रोना आ गया। within me I started to weep. मैंने प्रभु से रोया, I wept to the Lord. प्रभु ऐसा एक शक्ति है मुझे भी चाहिए। Lord, I want such a power too. प्रभु एक दर्शन दिया, God showed me a vision. प्रभु एक दाखरस का बर्तन लेके घूम रहा है। God took a basin of wine and he was moving around. घूमते 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 मेरे सामने आया, As he was roaming, he came in front of me. मुझको दाखरस पिलाए। He gave me that wine. उसके बाद मैं बैठा हुआ जगह भूल गया। After that, I forgot the place where I was. विश्वास करते हो आप? Do you believe? घुटना में बैठ जाओ, Come on to your knees. सारे पीछे हटा हुआ आत्मा आज निकल जाने का, Today, all the backslidden state must go away. आपका परिवार से निकल जाने का, Must go away from your family. और छोटा एक इंसिडेंट बता के आत्मा में भरने देगा। I'll say one small incident and then we'll fill in the spirit. एक बार एक मुसलमान जादू टोना करने वाला Once,
Once a Muslim person who used to do witchcraft, वो आरसी फादर के साथ में बैठा बस में, he was sitting along with an RC, a father or a pastor in a bus. बैठ के दोनों बात कर रहे थे. Both of them were conversing. वो बोला कि आप कौन सा चर्च में? He asked, from which church are you? उन्होंने पूछा क्या बात है? He asked, why? उन्होंने पूछा ये एक कलीसिया में कुछ कुछ चिल्लाते हैं ना, उसमें है क्या आप? He said, are you in that church where they shout a lot? बोला नहीं है. He said, no. बोला आपसे मुझे खतरा नहीं है. Then he said, then I'm not afraid of you. वो जादू टोना करने वाला बोला The person who did sorcery, he said, जो लोग चिल्लाता है ना, the people who shout, कुछ समझ में नहीं आता, we don't understand what they say. बोला उसका खिलाफ में मेरा जादू चलता नहीं है. But against them, my magic does not work. परमेश्वर का बच्चे, Dear child of God, आपका घर में शैतान क्यों खेल रहा है मालूम है? do you know why Satan is playing havoc in your family? प्रभु ने दिया आत्मा को आप इस्तेमाल नहीं करते हो. Because you're not using the spirit that God has given you. अन्य भाषा अभी बोलना शुरू करना Now you चाहिए. must start to speak in unknown tongues. जिसको जितनों को मिला कस के बोलिए. All those who got their unknown tongues, you must speak it out. शैतान आपका दिल के अंदर है तो वहां से निकलने दो. If Satan is inside your heart, let him come out. आपका घर में शैतान है तो उधर से निकलने दो. If Satan is in your family, let him come out of the family. पीछे हटा हुआ सारे आत्मा का खत्म आज ही होना चाहिए. Today, all the backslidden state must come to an end. लेकिन लोग कंजूस करता है. But people are stingy. आवाज निकलेगा तो गला दबेगा. If I will shout, my throat will become वो sore. बात करने को मुश्किल हो जाएगा. Then I can't speak. गुस्सा आते समय कितना जोर चिल्लाते हो? When you get angry, how loudly you आपका shout. शक्ति को प्रभु के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता? Why don't you use your energy for the Lord? थालियां बजाइए. Clap hands. हमारा परमेश्वर का आदर करिए. Honor our Lord. अन्य भाषा में बातें करो. Speak in unknown tongues. मुंह खोलिए, मुंह खोलिए. Open your mouth. Open your mouth. अन्य भाषा नहीं मिला तो आप स्तुति करते रहो. If you don't have the unknown tongues, you speak, praise the God. कोई मुंह बंद नहीं करेगा. Nobody must close your mouth. Shabala bakala bakatuda. Shabala bakara bakatuda. Shida bakara bantuda tuda. Shala bakala balakatuda. Hallelujah. 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 Rabaria labahu rabam shakala tuda. Hallelujah. 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 La barama hurabam shakala batuda. Hallelujah. 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 Bada bakara bala katuda bala. Rabakara tuda. Rabakala baud. Rabakhi rabam shakala tuda. Hallelujah. 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 Rabba rabala katuda tuda. Hallelujah. 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 तालियां. प्रभु को आदर करना बंद मत करो. हमारा बीच में घूम फिरा है. Hallelujah. खरा बखरा तुदा. शरा बखरा बला कतुदा. आपका जादू टोना का शक्ति दूर भाग रहा है. आपका बीमारी का शक्ति शरीर से निकल रही है. हालेलुया. 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 प्रिय परमेश्वर के बच्चे, Dear child of God, आप विश्वास कबूल किया, आशीष पाके ही लौटेगा. if you believe and if you confess, you will return only with स्वर्ग blessings. आपका नाम लिखा हुआ है. Heaven has recorded your name. आपने प्रभु का सामने खड़ा हुआ है. You're standing before your Lord. आज कोई भी आशीष बिना इधर से लौटेगा नहीं. Today no must go away empty without a blessing. प्रभु का हाथ बढ़ाया हुआ है. God is stretching out his hand, वो हर एक को स्पर्श कर रहा है. touching everybody. शबाला बखरा बखा थुड़ा बाला. शबाला बखरा थुड़ा. शबा बखरा थुड़ा. संदेह मत करो. संदेह मत करो. Do not doubt. Do not doubt. संदेह मत करो. Do not doubt. शबा करो. शबा वाला. Come on, we call about. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आंसू गिरने दो.
आंसू गिरने दो, Shed tears. Shed tears. आंसू गिरने दो, Shed tears. रोको मत आंसू को। हालेलुया, Lord, give me a blessing. हालेलुया, हालेलुया। कबाना भला खतरा, भला खतरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कबाना बालिरा सहल बाकी नमोरो तुड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें लहर लहर आत्मा का लहर मंडला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेल आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता है पृथ्वी पर वचन पूरा करने को हरे किसी वर्दी को आत्मा मंडलाता है पृथ्वी पर। मंडला प्रभु मुझ में, मंडला प्रभु मुझ में, मंडला प्रभु Oh, mighty God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. हमें संदूक वापस लाना है, हमें संदूक वापस लाना है. We have to bring back the ark of God. प्रभु का संदूक हम लाएंगे. कोई डेविड यहाँ बैठा है, कोई डेविड यहाँ बैठा है, कोई उड़ाव पुत्र यहाँ बैठा है, कोई सैमसन यहाँ बैठा है. जो कुछ अब खोया वापस लाने के लिए प्रभु चाहता है. ये हमारे द्वारा नहीं, हम हमारा संदूक को भी वापस लाएं. दाऊद संदूक भी वापस ले आया. हालेलुया. कई घरों में पीछे हटाने वो काम कर रहा है. कई माँ बाप बच्चों को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जाके माँ बाप को एनकरेज करके लाना है. हालेलुया. आपका खुशी वापस आ गया है, आपका महिमा वापस आ गया है. ओ लौटा लौटा, प्रभु बुला रहा. लौटा. ओ हालेलुया. ओ के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा. प्रेमी के चरणों में आ जाए. आत्मा का अभिषेक वो दे रहा है. कोई आंख खोलना नहीं, कोई आंख खोलना नहीं. बल्कि शक्ति के द्वारा नहीं, तेरी आत्मा से सब कुछ होगा. लेकिन तेरे चरणों के निकट में आ गया. आमीन. बल्कि द्वारा नहीं, शक्ति के द्वारा नहीं,
The holy fire, bring back the ark of God. तेरा संदूक लौटाने दे, तेरे संदूक लौटने दे, तेरे संदूक लौटने दे। Jesus, 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 Jesus. लौटा, लौटा. Come back, come back, come back. यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है. Oh, hallelujah. आमीन. पिछली बारिश आ गई है, पिछली बारिश आ गई है. सब ब्रदर्स अंदर जाइए, सब ब्रदर्स अंदर. डैनी, जोशुआ, ब्रदर उदय कुमार, प्लीज गो इनसाइड. सिस्टर्स बीच में आ जाइए, पीछे देखिए, ध्यान दीजिए, पीछे. वर्कर सिस्टर्स पीछे ध्यान दीजिए. ओ हालेलुया. एक बारिश की आवाज आ रही है. एक हाथ को मैं देखता हूँ, करमेल के पहाड़ पर एक हाथ को देखता हूँ. सबर सरे. हमें 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 हमें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमीन, आमीन. तू सब कुछ खो दिया है, प्रभु तेरे को दुगना अभिषेक लौटा रहा है, दुगना वरदान. जो कुछ तू खो दिया, तेरा पढ़ाई, तेरा स्वभाव, तेरा बदनामी, तेरा निंदा, तेरा निराशा अभी खत्म हो रहा है. इन जीसस नेम, इन जीसस नेम. Come, O Lord, with the mighty revival. Come, O Lord, with the mighty revival. Let salvation's river flow again. Send down showers on the land to rain and give us a mighty revival. Oh, come, O Lord, with the mighty revival. Come, O Lord, With the mighty revival. Yes, yes, yes. Glory, glory, glory. Maranatha, Maranatha. मेरा यीशु आ रहा है. मेरा दुल्हा, मेरा राजा, मेरा प्रेमी, मेरा रक्षक. कब आएगा तू? कब आएगा? कब आएगा? ओ कलीसिया को तैयार कर दे, पिछली बारिश के द्वारा तैयार कर दे. Prepare the church of God. Oh yes, this is the body of Christ. This is the man child of God. ये नर बच्चा है, ये पवित्र कुमारी है, ये मेमने का पत्नी है, ये पहलौटा है. Oh yes Lord, hallelujah. This is the lamb's wife of God. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. बच्चों, आपको एक अभिषेक आपके माइंड में, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस. अनॉइंटिंग इन द माइंड, अनॉइंटिंग इन द हार्ट, अनॉइंटिंग इन द बॉडी, अनॉइंटिंग इन द कॉन्शियंस. अभिषेक 4 जगह में काम करता है. हमारे वर्कर्स मीटिंग में कई साल पहले लेट पास्टर पी.एम. थॉमस हम लोग को ये वर्कर्स में स्टडी दिया था. किसको बुद्धि नहीं है हाथ उठाओ. जिसको पढ़ने में वीकनेस है, मेमोरी नहीं है, शर्माओ मत. मुझे बुद्धि चाहिए बोलने वाला हाथ उठाइए. माइंड में एक अभिषेक आने वाला है अभी.
आपका स्कूल में टॉपर बनने जा रहा है, आप स्टेट में टॉपर बनने जा रहा है, आपका माइंड में बुद्धि, हृदय में परमेश्वर का स्वभाव और भक्ति, उसको आईपीसी बोलूंगा, इंटेलिजेंस, पावर एंड कैरेक्टर। इंटेलिजेंस इन द माइंड, पावर इन द बॉडी एंड कैरेक्टर इन द हार्ट। दिस इज कॉल्ड आईपीसी, इंटेलिजेंस, पावर, कैरेक्टर। और विवेक में डिसीजन लेने जा रहे हैं, विवेक में हम एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। बारिश आ रही है, आसमानी बारिश आ रही है। सिंग दैट सॉन्ग 16 इन द न्यू शीट। आपके अंदर एक अभिषेक आएगी, आप एक वाचा बांधोगे, आपका माइंड में, हृदय में, विवेक में अभिषेक आ रही है। होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर। Oh, in the mind, in the heart, in the body, in the conscience. Fire, 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 fire. मुझे छू ले, प्रभु को बोलो, मैं छू ले, मुझे छू ले, मैं तेरे को छू रहा हूं, मैं तेरे को छू रहा हूं प्रभु जी। होरी बारा की रामा नाथु दीवा ना कशने वने कथु दमा नाथु दबानी। आमीन, आमीन। अपना हृदय को शुद्ध करो, अपने माइंड को शुद्ध करो, अपने विवेक में वाचा बांधो, अधर्म को नफरत करो। हे तेरी विधि तेरे को आनंद का तेल से भरेगा। वो आनंद का तेल, पवित्र तेल, विशेष तेल, नया तेल, आनंद का तेल, पवित्र तेल, विशेष तेल, नया तेल। हालेलुया। आंख खोलो मत, आंख खोलो मत। वेट, वेट। संदूक वापिस लाना है। वी हैव टू ब्रिंग बैक द आर्क ऑफ गॉड। हम संदूक है, हम आगे बढ़ेंगे। यर्दन हट जाएगी, समुद्र हट जाएगी, आगे बढ़े। संदूक वापिस लाना है, महिमा वापिस लाना है, दाऊद का गिरा हुआ तंबू खड़ा करना है। We have to raise the fallen tabernacle of David. Hallelujah. Raise up, raise up. दाऊद का गिरा हुआ तंबू, दाऊद का गिरा हुआ तंबू उठाना है। Raise up the fallen tabernacle of David. Raise up the fallen tabernacle of David. दाऊद का गिरा तंबू उठाना है, संदूक वापिस लाना है। Bring back the ark of God. तेरा घराना, तेरा परिवार तेरे द्वारा लौटाएगा, तेरे द्वारा देश आशीष पाएगा। डरो मत, डरो मत, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा बंधन तोड़, पवित्र आत्मा, स्पिरिट ऑफ गॉड डिसेंड अपॉन मी। हिंदी, पवित्र आत्मा उतरा, बंधन तोड़। हालेलुया। उतरा जा, बंधन खोल और मुझको छुड़ा। शक्ति तेरी शक्ति उस पर आने दे, शक्ति तेरी शक्ति उस पर आने दे। और यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस, यस। तेरी शक्ति उस पर आने दे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। जिसको प्रभु आज शाम की मीटिंग में छुआ है, जल्दी आगे आइए। एक वर्ड बोलना केवल। प्रभु के आत्मा को छुआ है, दर्शन देखा है, प्रभु की आवाज सुना है, दूसरों के लिए एनकरेजमेंट होगा। वैसे आपको गवाही के लिए बाद में भी टाइम देना चाहते हैं। आज भी गवाही का टाइम था 7 से 7:30। हम लोगों ने आत्मा भरने के लिए वो समय दिया। अभी 1 मिनट बचा है, हम खत्म कर रहे हैं। अभी अपना बाइबल, अपना सामान, पेन, नोटबुक सब संभाल लीजिए। दूसरों का कोई सामान उठाना नहीं। बच्चे लोग उठ के पीछे जाइए। दूसरों का सामान कुछ उठाना नहीं। सेंटर पास से पूछा है मुझसे कितने लोग बपतिस्मा के लिए है। बपतिस्मा के लिए जो है अब भी खड़े हो जाइए, मुझे गिनती करना है। शर्मिंदा नहीं होना। आप यहां शर्मिंदा होगे, स्वर्ग में आपके बारे में यीशु शर्मिंदा होगा। कितने जन है? प्लीज काउंट। ब्रदर्स, वॉलंटियर्स, गिन लो कितना जन है। सिस्टर्स, कितना जन है बपतिस्मा जो लेना चाहते हैं? जो सच्चा तरह से मर गया है उसी को हम गाड़ेंगे। दोस्तों, आर रियली डेड फॉर क्राइस्ट। मसीह में 10 अनुभव है। chosen in Christ, abiding in Christ, triumphing in Christ, growing in Christ, complete in Christ, hidden in Christ, लास्ट में डेड इन क्राइस्ट। प्रभु आने से पहले वो भी पूरा होना है, लेकिन बपतिस्मा में ही वो डेथ शुरू हो रहा है। 10 क्वालिटीज ऑफ डेड इन क्राइस्ट। कितने जन है बपतिस्मा वाले? क्या आपने बपतिस्मा का स्टडी में बैठा था? क्या आपके कलीसिया के पास्टर को, ब्रदर को मालूम है? आपके कलीसिया के बड़ी सिस्टर को मालूम है बपतिस्मा दे रहे हैं? बपतिस्मा दे रहे करके मालूम है? अभी आप लोग वापस जाना नहीं, मुझे नाम दे के जाना, मुझे पास्टर को अभी देना है। राइट? जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं उनके लिए हम तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जोशुआ, कम हियर। स्नान करने పేరు सिस्टर्स, कोई हेल्प करना मेरे को और उनका नाम लिख के देना चाहिए। एनी सिस्टर्स हेल्प करना, इन लड़कियों का नाम लिख के दे देना। जाना नहीं अभी। कोई गवाही देने के लिए चाहता है आगे आएगा। टाइम खत्म हो गया। हम लोग भी बहुत टायर्ड है, हम खड़ा नहीं हो पा रहे। गवाही है, बोलना चाहती हो? एनीबॉडी गवाही देना चाहता है? वॉइस टैलेंट नाम लिख लेते। वॉइस टैलेंट। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं एक नई विश्वासी हूँ, लेकिन मुझे ने प्रभु ने बहुत जल्दी आशीष दिया। प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ और मुझे हमेशा ऐसी आशीष देते रहे प्रभु। सबको आशीष दे, सबको प्रेज द लॉर्ड। शक्ति मिला बेटा, पवित्र आत्मा मिला, एक नया भाषा मुंह में आया। क्या अन्य भाषा आया? जाओ। और कोई है? फटाफट फटाफट, प्रभु के नाम के महिमा के लिए। समय नहीं है। इधर बता दो, ए माइक दे दो भाई। सबको प्रेज लॉर्ड। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे चुना और जीवन की उत्पत्ति से पहले चुना, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं प्रभु की इतनी प्रेम से, उतनी सच्चे दिल से उसके आराधना में कर पाई, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं तो चर्च भी पहली बार आई हूँ, पहली बार संडे क्लास पे आई हूँ। मुझे दीपक भैया वो विश्वासी हैं, जो उसने मुझे कहा कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो मैंने पहले ही बार में विश्वास किया, तो मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा कि परमेश्वर में मेरे हर एक राह में मेरे साथ ही चलता है। और प्रभु ने मुझे यहाँ चर्च पे लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु दीपक भैया और उनकी फैमिली को भी आशीष करे और उनको 32वां आगमन के लिए तैयार करे। और प्रभु और रोशनी भाभी को भी तैयार करे। उसने भी मुझे प्रभु में आने के लिए सहायता मदद किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं पीता परमेश्वर, मैं तेरे सामने बस बेटा बस। और कोई गवाही वाला है? जल्दी आओ, जल्दी आओ।
वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बॉयज बॉयज कोई नहीं है? कितना अभिषेक मिला। पीछे लाइन वाला एक लड़का को मेरे सामने आज अभिषेक मिला था, सबसे लास्ट लाइन में बैठा था। यदि आप गवाही देने से, ये ब्रदर बोल रहा है कि प्रभु आपको और आशीष देगा। समय नहीं है, एक मिनट, ओनली वन वर्ड, कम ऑन कम ऑन। पास थोड़ा बहुत टाइम से प्रेयर कर रही थी कि मेरे को एक नया अभिषेक मिलना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे को आज नया अभिषेक दे दे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना बस, जल्दी फटाफट। जल्दी दौड़ के इतना दौड़ के आ। प्रेज लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक को नया करके दिया और परमेश्वर दर्शन दिखाया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आगे भी संभाल के रखना चाहिए। छोटी सी गवाही से बैठती हूँ। प्रेज लॉर्ड। दर्शन दे, क्या दर्शन? छोटा सा बोलो, क्या दर्शन देखा? परमेश्वर मुझे, बोलो। परमेश्वर मुझे आशा डरो मत, बोलो। परमेश्वर मेरे से बातें किया कि तू कभी डरना नहीं और कभी घबराना, उदास ना रहना। कभी भी मैं उदास रहती थी कि मैं कैसे आत्मा में भरूंगी करके, मैं डर के आत्मा में भरती थी। परमेश्वर मुझे और नया अभिषेक करके दिया और अपना दर्शन दिखाया, इसलिए धन्यवाद करती। छोटी सी गवाही से बढ़ती। प्रेज लॉर्ड। बोलो जल्दी बोलो। सबको प्रेज, इधर आ जा, ये रखा है ना। सबको प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने आत्माएं भरते समय एक दर्शन दिखाया। जिस समय सब आत्माएं जब भर रहे थे, तब एक के बाद एक ज्वालामुखी फटते हुए मैंने देखा और हर तरफ आग की रोशनी से पवित्रता की आग मेरे को दिखाई दी। और परमेश्वर ने मुझे दर्शन से बताया, मैं तुम सबको पवित्र करूंगा, स्वर्गराज के लिए तैयार करूंगा और एक बड़ी बेदारी के लिए तुम सबको चुनता हूँ। He saw a volcanic eruption, एक वोल्केनिक एक्सप्लोशन हुआ, ज्वालामुखी वोल्केनिक, और उसमें से पवित्रता की आग आया और बोला मैं तुमको सब पवित्र करेगा। हालेलुया। बस। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम प्रकाश मसीह, मैं ज्योतिपुर फेतोंग से हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं गवाही के लिए आऊँ, लेकिन प्रभु ने मुझे हिम्मत दी, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु में ना आने से पहले मैं संसार में डूबा हुआ व्यक्ति था। जिस प्रकार एक जवान हर एक अभिलाषाओं में डूबा होता है, उसी प्रकार में भी नशे के बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति था। संसारिक अभिलाषाओं से बंधा हुआ व्यक्ति था, जिसमें मैं शराब का सेवन करता था और नशे की जितनी भी चीजें थी, उन सारी चीजों से मैं बुरी तरीके से भरा हुआ व्यक्ति था और बुरी अभिलाषाओं से भरा व्यक्ति था। माता पिता की आज्ञा को बिल्कुल भी नहीं मानता था। जिस प्रकार पास्टर जी ने कहा कि एक माता पिता अपने बच्चे से दुखी थे, उसी श्रेणी में मैं भी आता था। मेरे भी माता पिता मुझसे बहुत दुखी थे और मेरे माता पिता मेरे सामने कहते थे काश हमारा बेटा ना होता तो अच्छा था। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया। प्रभु ने मुझे नया जीवन में मेरे सारे बंधनों से मुझे छुटकारा दिया। आज मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते हैं। ये सब प्रभु की दया है और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया से मुझे इतना प्रेम मिला, सब प्रभु की दया है। प्रभु से मुझे गवाही के लिए बोलने के लिए मदद किया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई है? ये लास्ट है, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। अरे 2 है क्या? कोई बात नहीं। 3 है क्या? कोई बात नहीं। 10 बॉयज, वेरी गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आत्मा में भरते के समय मैंने एक दर्शन देखा, जिसमें मैंने देखा यहाँ आग जल रहा है और उसमें से धुआं उठ रहा है और वो धुआं से पूरा जगह भर गया है। ऐसा परमेश्वर ने मुझे दिखाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ दौड़ के आओ, इधर आओ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मेरे आने के टाइम में तो बहुत रुकावट आ रहा था। मैंने यहाँ मांगी करके सोची थी, लेकिन मैं 3 दिन फास्टिंग प्रेयर रख के प्रार्थना की, प्रभु जो मेरे लिए रखे परमेश्वर इस जगह आशीष को शासित को पहुंचे। सच में मैं परमेश्वर पिता को अपने हृदय में क्रूस को दर्शन को मैंने देखा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत ही वचनों से परमेश्वर पिता मुझसे बात किए, उठ और मेरे पीछे हो के चल, और मैंने तुझे अपने बहुमूल्य लहू से छुड़ा लिया। सच में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती। परमेश्वर पिता मेरे सोचने से, विश्वास से भी बढ़कर मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे दिया। मैं धन्यवाद करती। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे भरा, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना के दौरान मैंने दर्शन देखा कि मैं क्रूस को देख रही हूँ और उसके क्रूस के पास से बहुत तेज प्रकाश आ रहा है और वो रोशनी मुझे प्रकाशमान कर रही है और परमेश्वर मुझसे वचन से बात कर रहा है कि
उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है करके परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और मैं बहुत आशीषित हुई और परमेश्वर ने अपने तेज से मुझे भरा, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब एक बड़ा गुड न्यूज, किसी किसी को प्रभु सियोन का अभिषेक दिया है, हमें पक्का मालूम है। सेवा में जाने के लिए 20 साल के ऊपर या उससे नीचे भी प्रभु बात किया होगा। मेरा छोटा मुंडा से बात किया, कलवरी का दर्शन दिया, उसको दिया, कलवरी देखा वो इसको, तो आपसे भी प्रभु बात किया है। डेफिनेटली चुपचाप बैठना नहीं, हम सियोन में आपको किडनैप करके नहीं ले जाएंगे, डोंट वरी। आपको किडनैप करके सियोन में नहीं जा रहे, लेकिन कभी कभी प्रभु परेशानी, तकलीफ, प्रॉब्लम में डाल के फिर फिल्टर करके लेके आता है। इसलिए आप खुद चाहते हो सेवा करने के लिए तो खड़े हो जाओ। ये सफेद कपड़ा वालों का पार्टी में मिल जाएगा, आम आदमी में मिल जाएगा। कोई है? हमें वेट करना पड़ेगा ना, फ्राइडे तक वेट करना है क्या? कोई बात नहीं, प्रभु अभी तक सारे आशीष दिया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। कल सुबह 7:30 बजे, वेरी गुड, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कल सुबह 7:30 बजे बपतिस्मा का बाइबल स्टडी है। वैसे अभी मेरे साथ आना है और पास्टर से मिलना है, ठीक है? मैं पास्टर से पूछ लेता हूँ, पास्टर जी आपका पूछताछ करने के बाद ही हम फाइनलाइज कर सकता है। फिर भी आप स्टडी में जरूर आना, सुबह 7:30 बजे 2 बाइबल अभ्यास है ना, 2 है ना, 2 बाइबल स्टडीज टुमारो मॉर्निंग, नो 2। पूरा जवानों के लिए एक बाइबल स्टडी है 7:30 बजे, अलग से एक बाइबल स्टडी बपतिस्मा लेने वालों के लिए है। वो यहाँ नहीं, वो दूसरे जगह है, हम आपको बता देंगे। शायद वो प्रेयर शेड, फास्टिंग प्रेयर शेड में हो सकता है। बाकी आम बाइबल अभ्यास सुबह 7:30 बजे है। इसलिए इन सारे कार्यक्रम में भाग लेना। सुबह 5 बजे प्रेसिंग है। आज रात को 10 बजे भोजन करके आना। आपके कलीसिया से जो लोग गाना नहीं गाया है आपको चांस देंगे। इसके बाद टाइम बचेगा तो सोलो सिंगिंग के लिए हम देना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा के या इंस्ट्रूमेंट के बगैर अकेला गाना चाहते हो, 2-2 गाना चाहते हो, पहले जो गाया है उनको फिर से मैं चांस दूंगा। गाना सुनने के लिए मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक्स टू हियर योर वॉइस एंड सिंगिंग। आंख बंद करके तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल का मीटिंग, परसों का मीटिंग प्रभु आशीष करने के लिए स्तुति करें। वेट, हम लोग यहाँ बैठे, कुछ लोग किचन में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग विश्वासी गेट पर बैठे थे दिन भर। ओल्ड पीपल सिटिंग एट द गेट इन द हॉट हीट ऑफ द सन। गर्मी में कुछ पुराने विश्वासी गेट पर बड़े पास्टर जी ने बिठाया था, मैंने देखा उनको। यहाँ पर माइक में भी काम कर रहे कुछ लोग हैं, इतना मेहनत बाकी सारे कर रहे। सबको प्रभु आशीष करना, बलवंत करना, कोई भी बीमार नहीं होना। स्तुति करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए तारीफ करे, प्रार्थना करे। Gracious loving Father, thank for this wonderful time, O Lord Jesus. Especially appointed the day for our children, Lord Jesus. You brought us in your wings, O Lord Jesus. Lord, the horses ready for the days of battle, but Lord, safety from the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. You brought your children. Thank you so much, Lord Jesus. Revive our children, Lord Jesus. By your anointing, by your word, Lord Jesus, by your vision, Lord, you revived all our children. Thank you so much, Lord Jesus. Amen, Lord, the days, Lord Jesus, appointed for the children, Lord Jesus. Amen. You sanctify by your blood, by your word, by your anointing, Lord Jesus. Thank you so much for all the ways you dealt with our children, Lord Jesus. Amen, Lord. Help them to preserve this experience to all the days of their life, O Lord. Amen. Continue with this, Lord Jesus. Amen, Lord. With these things should be continue with their life, O Lord Jesus. All the days, O Lord Jesus, by the word, by your anointing, should help them to go forward in their life, O Lord Jesus. The race they started in their life towards the revival, Lord Jesus. That revival should complete when you see your face, Lord Jesus. Make them worthy for the day, Lord Jesus. Amen, Lord. Till the day, O Lord Jesus. Amen. Hold their hands and lead them without any difficulties, Lord Jesus. Be with them all the days of the life, Lord Jesus. For all the events you conducted through your anointing, Lord Jesus, by the Holy Spirit. Thank you so much for all the ways, Lord Jesus. Be with their children. Make us all to be worthy and quicken us, revive us, renew us. Make us all to be worthy for the day of the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का नगर, पवित्र आत्मा का सहभागिता, शांति, सुरक्षा यीशु मसीह की आमद हमेशा तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।